Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss a first part of offences against state under Indian Penal Code, in which we will discuss section 121 to section 124 of Indian Penal Code. So we will discuss all the concept and scenario in which the person may be liable for the offense against state. What exactly the provisions are there from section 121 to 124 we will discuss under this lecture, as well as we will discuss the question asked by the examiner on these sections and the probable question which may be asked by the examiner on this particular section. So without wasting your much time, let's start the topic. Offences against state, part first. Section 121 of Indian Penal Code deals with waging or attempting to wage war or abetting waging of war against the government of India. Section 121. So whoever wages war against the government of India or attempts to wage war or abates the waging of such a war shall be punished with the death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. So the person whoever wages war against the government of India and the person who attempts the wage of war against the government of India, as well as the person who abates the waging of such a war, such person will be punished under section 121 and the punishment will be a death penalty or imprisonment for life and he shall also be liable for fine. तो जो कोई भी पर्सन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में बगावत करता है या जंग का ऐलान करता है, उस पर्सन को एक तो सजाए मौत होगी या उसको उम्र कैद होगी और वो फाइन के लिए भी लायबल रहेगा। ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में जंग करने के लिए किसी को उकसाता है, इंस्टिगेट करता है, अबेट करता है, उसको भी सेक्शन 121 में सेम पनिशमेंट होगी, डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फाइन के लिए लायबल रहेगा। या अगर पर्सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में वेजिंग वॉर का अटेम्प्ट करता है, उसके लिए भी सेम पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या साथ ही साथ वो फाइन के लिए भी लायबल हो सकता है। सो सैम जॉइंस एन इंसरेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. Sam has committed the offense defined in this particular section. Suppose if the Sam joins a insurrection against the government of India, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में बगावत हुई, उसको उसमें अगर सैम खुद को ज्वाइन करता है, सैम ज्वाइन करता है वो बगावत को, तो सैम लायबल रहेगा सेक्शन 121 के ऑफेंस के लिए. सैम विल बी लायबल अंडर सेक्शन 121 टू फेस द punishment. Why? Because he wages war against the government of India. तो ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में जंग का ऐलान करता है, बगावत करता है, वो पर्सन को डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी. प्रोबेबल क्वेश्चन सेक्शन 121 पे, waging or attempting to wage war or abating waging of war against the government of India mentioned in dash dash section 120B, 121, 124A or 121A. So we have already discussed, the title itself shows that section 121 mentioned the waging or attempting to wage war against the government of India. Now section 121A, conspiracy to commit offences punishable by section 121. We have discussed section 121 and what exactly the offence is punishable under section 121 we have discussed. If any person conspire to commit the offense which is punishable under section 121 of Indian Penal Code, what will be the punishment for that particular offense is mentioned under section 121A. So whoever within or without India conspires to commit any of the offense punishable by section 121. So any person who conspire within the territory of India or outside the territory of India, any offense which is punishable under section 121. ऐसा offense, for example 121 में हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में कोई जंग का ऐलान करता है या बगावत करता है तो उसको 121 सेक्शन 121 में उसको पनिशमेंट होगी. तो
अगर यही ऑफेंस की कोई कॉन्स्पिरेसी करता है, अगर कोई कटरस्ता है ये ऑफेंस का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में जंग का अगर कोई कॉन्स्पिरेसी करता है, वो चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में जंग की अगर कॉन्स्पिरेसी करता है कोई पर्सन, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 121A में। और कंस्पायर्स टू ओवररेड by means of criminal force or the show of criminal force the central government or any state government, और ऐसे ऑफेंस के लिए कॉन्स्पिरेसी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, क्रिमिनल फोर्स यूज करता है, काय के लिए, टू कमिट द ऑफेंस विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 121। ऐसे ऑफेंस के लिए कॉन्स्पिरेसी करता है कि क्रिमिनल फोर्स यूज करने की कॉन्स्पिरेसी करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, शॉल बी पनिश्ड with imprisonment for life or with imprisonment of either description which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो ऐसे पर्सन के लिए पनिशमेंट होगी एक तो उम्र कैद या 10 साल तक की सजा, और साथ ही साथ वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। Explanation is given that to constitute a conspiracy under this section, it is not necessary that any act or illegal omission shall take place in pursuance thereof। तो यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस सेक्शन 121A में बताया गया, वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए कोई अटेम्प्ट होना, कोई एक्ट होना या कोई ओमिशन होना जरूरी नहीं है। कोई एक्ट नहीं भी हुआ कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड, फिर भी वो पर्सन सेक्शन 121A के पनिशमेंट के लिए लायबल होगा। सेक्शन 122 collect arms with intention of waging war against the government of India, section 122 is there। So whoever collects men, arms or ammunition or otherwise prepares to wage war with the intention of either waging or being prepared to wage war against the government of India, ऐसा पर्सन जो किसी लोगों को जमा कर रहा है, काय के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेजिंग ऑफ वार के ऑफेंस के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में जंग के लिए अगर वो पर्सन को इकट्ठा कर रहा है या तो वेपन जमा कर रहा है, आर्म्स कलेक्ट कर रहा है, या अम्यूनिशन बारूद, गोला बारूद अगर वो जमा कर रहा है, काय के लिए, वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस ऑफेंस के लिए। इफ एनी पर्सन कलेक्टिंग आर्म्स, मेन्स और अम्यूनिशन फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ वेजिंग वार against the government of India shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term not exceeding 10 years and shall also be liable to fine। तो ऐसा पर्सन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में जंग करने के लिए लोगों को जमा कर रहा है या वेपन कलेक्ट कर रहा है या गोला बारूद जमा कर रहा है, उस पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 122 में, और पनिशमेंट होगी उम्र कैद या 10 साल तक की सजा, और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 122 पे, अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी द पर्सन इज लायबल फॉर ऑफेंस ऑफ कलेक्टिंग आर्म्स विथ इंटेंशन ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो सेक्शन 121, 124, 122 and 124A। द करेक्ट आंसर इज 122। नाउ सेक्शन 123 is there, concealing with intent to facilitate, designed to wage war। Now whoever by any act or by any illegal omission conceal the existence of a design to wage war against the government of India, intending by such concealment to facilitate or knowing it to be likely that such concealment will facilitate the waging of war। Suppose if the person who is having a knowledge regarding the offense of waging war against the government of India, and if such person concealing the same, and by such concealing if he provides a facilitation for the commission of the offense of waging war against the government of India। So section 123 ये कहता है कि ये ऐसा पर्सन जिसको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में ये ऑफेंस होने वाला है, कोई पर्सन ये ऑफेंस करने वाला है वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और वो उसे पता है और वो उसको छुपाता है, और ये छुपाने के जरिए उनको सहूलत फ्राहम करता है, सहूलत प्रोवाइड करता है कि वो ऑफेंस करे, इसके छुपाने के वजह से उनको ऑफेंस करना आसान हो रहा है। तो जो पर्सन ये छुपा रहा है ये फैक्ट को, वो पर्सन सेक्शन 123 के लिए लायबल रहेगा। सपोज मुझे पता है कि कोई ग्रुप ऑफ पर्सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में ऑफेंस करने वाला है, वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और मैं वो फैक्ट को छुपाता हूं और मेरे छुपाने के वजह से वो ऑफेंस करने में उनको आसानी होती है, तो मैं सेक्शन 123 में
पनिशेबल होगा। शल और मेरा पनिशमेंट क्या होगी? आई शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो मुझे 10 साल तक की सजा हो सकती है और मुझे मेरे अगेंस्ट में कोर्ट फाइन का ऑर्डर भी पास कर सकता है। सेक्शन 124, assaulting president, governor with intent to compel or restrain the exercise of any lawful power. So whoever with the intention of inducing or compelling the president of India or governor of any state to exercise or refrain from exercising in any manner any of the lawful power of such president or governor. So ऐसा person जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नर ऑफ स्टेट को कंपेल करता है, उस पर दबाव डालता है ऐसा एक्ट करने के लिए जो उसने नहीं करना चाहिए, या ऐसा एक्ट करने से उसको रोकता है दबाव डाल के जो उसका करने का पावर है। समझ रहे हो? तो वो पर्सन जो रोक रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नर को या इंड्यूस कर रहा है, उस पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 124 में। असॉल्ट और रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट और अटेम्प्ट्स रॉन्गफुली टू रेस्ट्रेंट और ओवरएव्स बाय means of criminal force or the show of a criminal force or attempt so to override such president or governor, या उस प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट में क्रिमिनल फोर्स यूज करता है काय के लिए? उसको कोई एक्ट करने से रोकने के लिए या उसका एक्ट करने का जो पावर है वो नहीं करने देने के लिए। तो ऐसा अगर कोई पर्सन रोकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नर को, सच पर्सन शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो वो पर्सन जो प्रेसिडेंट को या गवर्नर को उसका लॉफुल पावर एक्सरसाइज करने से रोक रहा होगा, ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी 7 साल तक की सजा और फाइन के लिए भी वो लायबल हो सकता है। अब प्रोबेबल क्वेश्चन है इस पर, the accused will be punished under section 124 of IPC if he compels or restrained by assaulting the exercise of any lawful power of प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर। तो हमने देखा कि दो लोगों को रोकने से सेक्शन 124 में लायबिलिटी बनती है, एक तो प्रेसिडेंट या गवर्नर। तो हम देखें कि यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन में है कि प्रेसिडेंट को अगर रोकता है या गवर्नर को रोकता है तो सेक्शन 124 में उसको पनिशमेंट हो सकती है। तो करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ offenses against state. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.